कुछ और है तो नहीं, सिर्फ तुम ही हो। तो कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो? स्क्रीन शेयर चाहिए? ठीक है, चलो स्टार्ट करो। Good evening, sir, and my dear friend. I am Raj Verma. I am Delhi. I would like to present my views on some topic. Lecture overview. What is transistor? Types, characteristics, and application. What is transistor? Semiconductor ability to change the character. Can allow current or prohibit current to flow. Useful as a switch and amplifier. Essentially part of many technology advance. A brief history. Guglielmo Marconi invents in 1895 problems for long distance travel signal must be amplified. Lee De Forest improves on Fleming's original vacuum tube to amplify signal. ओके, कंटिन्यू करो। Yes, sir. A brief story. Guglielmo Marconi invents radio in 1895. Problem. For long distance travel, signal must be amplified. Lee De Forest improves on Fleming original vacuum tube to amplify signal. Made use of third electrode, too bulky for most applications. Transistor is born. Bell Labs 1947. Bardeen Bertrand and Stockley. Originally made of germanium. Current transistor made of doped silicon. How transistor work? Doping. Adding a small amount of other elements to create additional protons or electrons. P-type. Dopant lack of fourth valence electron, bronze and aluminum. N-type dopants have an additional fifth valence electron, phosphorus and arsenic. Importance. Current only flow from P to N. Diode and bias. Diode, simple PN junction. Forward bias allow current to flow from P to N. Reverse bias, no current allowed to from N to P. Breakdown voltage, sufficient N to P voltage of Zener diode will allow to current to flow in this direction. Bipolar junction transistor. Three adjacent region of dot. Si, base, thin layer less dot, collector and emitter. Two types of BJT, NPN and PNP. Most common NPN focus on it. Developed by Stockley, 1949. First thin layer of P-type, sandwiched between two layers of N-type. N-type of emitter more heavily doped than collector, with VC greater than VV greater than VA. Base emitter junction forward bias, base collector reverse bias. Electron diffuse from emitter to base, from N to P. Their depletion rate on the base collector junction, no flow electron alloyed. But the base is the thin emitter region, and N plus heavily electrons have no moment to cross the base into the collector. The small base current IB controls a large current IC. I is equal to IC plus IB. VE is equal to VV minus VE. VC is equal to VC minus VE. IC is equal to beta IB. BJT characteristic, current gain. A is the fraction of electrons that diffuse across the narrow region. A 1 minus A is the fraction electrons that combine with the holes in the base region to create base current. The current gain is expressed in terms of beta of the transistor, often called HFE by manufacturer.
Beta is temperature and voltage dependent. It can vary a lot among transistor. Common values of signal BGT 20 to 200. Emitter NPN common emitter circuit. Emitter is grounded. Base emitter start to conduct with the VV equal to 0.6 V volt. IC flow and its IC is equal to IB. Increasing IB, VE slowly increases to 0.7 volt, but IC rises exponentially. As IC rises, voltage drop across RC increase and VC drop toward ground. Transistor in saturation. No more linear relation between IC and common emitter characteristic. Collector current controlled by the collector circuit. Switch behavior. Collector current proportional to base current. The avalanche multiplication of current through collector junction approach to be avoided. Cutoff region, no current flow. Operation region summary. Operation region IV or VC care. VC and VE junction mode. Cutoff. IV is equal to very small. VC and VE junction reverse and reverse. Mode open switch. Saturation. VC is equal to small and forward. Mode close switch. Active linear. VC is equal to moderate. Junction reverse and forward. Mode linear amplifier. Breakdown. VC large. Beyond limits. Mode overload. BJT is a switch. V low is less than 0.7 volt. VE junction not forward bias. Cutoff region. No current flow. V out is equal to VC equal to VCC. V out is equal to high. V in high. VE junction forward bias. VB is equal to 0.7 volt. Saturation region. VC is small. 0.5 volt of saturated VGT. V out is equal to small. IB is equal to V in minus VB by RB. BJT is a switch to basic of digital logic circuit. Input to transistor gate can be analog or digital. Building block of TTL transistor logic. Guidelines for designing a transistor switch. VC is greater than VB greater than VE. VB is equal to 0.7 volt. IC independent from IB in saturation. Mean IB estimated from by IB mean into IC. Input resistance such that IB greater than 5 to 10 times. IB mean because varies among component with the temperature and voltage, and RB may change when current flow. Calculate the max IC and IB not to overcome device specification. BJT is an amplifier. Common emitter mode. Linear active region. Significant current gain. Example, lead gain equal to 100. Assume to be in active region. VB is equal to 0.7 volt. Find in active region. VB is equal to 0.7. I is equal to IB is equal to IC is equal to 1 by IB. IB is equal to VB into VR. V RB into RE into 101 equal to 5 into 0.7 by 402 equal to 0.0170 mA. VCB is greater than VC greater than 0, so the VGT is in active region. Thank you. Thank you, sir. जिसको जो कॉपी पेस्ट किए हो वो फॉन्ट मिसिंग होने के कारण वो जो आ रहा है वो तुम्हारे जो तुम एक्सप्रेशन दिखा रहे हो उसमें क्रॉस सिंबल आ रहा है ना यहाँ पे वो फॉन्ट मिसिंग है इसीलिए आ रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज तो कोई जुड़ा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सबको बोलना कि हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस उसका जो तुम लोग के सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी तुम लोग को वो वाला क्लास हम करा देंगे, ठीक है। सबको कन्वे कर देना इस बात को, सब लोग आए, और आज सब लोग प्रेजेंटेशन के डर से लोग नहीं आए, नहीं ओके। अगर कहीं कुछ डाउट है तो पूछो।
अगले क्लास में हम तुमको वो अभी तुम क्वेश्चन दिखा रहे थे दूसरे यूनिवर्सिटी वाला, तो उसमें जो Yes, sir. प्लस प्लस को अलजेब्रा दोनों हम लोग अगले क्लास में दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ और? सर कॉर्ड्स रूल में प्रॉब्लम हो रहा है सर, मतलब Chords पढ़ने के बाद rule। भी समझ में मतलब नहीं आ रहा है। यस ठीक है, तो कॉर्ड्स रूल का एक बार वीडियो फिर से देख लो, और तुमको वो दिए है ना PDF है ना कॉर्ड्स रूल का वर्कआउट में, और जब क्लास में अगले क्लास में जब सब लोग रहेंगे सवाल करना बताएंगे, ठीक है ना? यस सर। कॉर्ड्स रूल ओके का सर। किस कौन सा रूल तुमको नहीं समझ में आया? सर उसमें मतलब कॉर्ड्स रूल समझ ही में नहीं आया हमको, मतलब देखने के बाद भी मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कोई रूल नहीं समझ में आया? नो सर। ऐसा कैसे हो जाएगा? बहुत सिंपल सिंपल रूल तो है। सिंपल रूल नंबर 1 कहता है कि सारा का सारा जो डेटा है, सारा इंफॉर्मेशन है, वो टेबल में रहेगा। वो टेबल में रहेगा। सारा का सारा डेटा कहने का मतलब कि नॉट ओनली द यूजर्स डेटा, सारा डेटा मतलब हम अगर कुछ रोल बना रहे हैं, कुछ कंस्ट्रेंट रख रहे हैं, वो सारा का सारा सब कुछ टेबल में रहना चाहिए, है ना? तो ये समझ में नहीं आए पूरा रूल नंबर 1। सारा का सारा डेटा, सारा जो हम इनपुट करते हैं, अच्छा यस सर। क्रिएट टेबल तो किए तो समझ में आया। वो सारा का सारा जो यस डेटा सर। है जो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो कहाँ है? टेबल में है ना? यस सर। टेबल में है। तो हम मान लो किसी को प्राइमरी की बना रहे हैं, कहीं पे फॉरेन की बना रहे हैं, कहीं पे कुछ और कंस्टेंट लगा रहे हैं, नल नॉट नल लगा रहे हैं, यूनिक लगा रहे हैं, ये सारा चीज कहाँ स्टोर होगा? कहीं अलग से स्टोर होगा, किसी तरह के किसी तरह कोई फाइल बना के स्टोर कर देंगे, ये सारा भी किसी न किसी टेबल में स्टोर होगा। तो रूल 1 जो है कॉस्टल का, ये यस कहता सर। है कि सारा डेटा टेबल में ही होना चाहिए, सारा डेटा टेबल में होना चाहिए। ऐसे ही करके सारा रूल है, समझ में आ जाएगा तुमको। एक बार फिर से पढ़ना, अगले क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसको, अगले क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। सर वो सर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में सर जो की है सर, उसको एग्जांपल के साथ मतलब पीडीएफ देके फिर से बता फंक्शनल दीजिए। डिपेंडेंसी उसमें सर उसमें की है ना सर प्राइमरी की, ये सब को एग्जांपल जो पीडीएफ में एग्जांपल है उससे फिर से बता देते सर, और क्लियर हो जाता है अच्छे से। फंक्शनल डिपेंडेंसी फिर से बता दें, फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बात कर ये रहे सर हैं? उसमें जो की है सर वो, और जो अच्छा ठीक है, ये सर उसको मतलब निकालते कैसे हैं, उसको बनाते हैं वो। ठीक, अब बता दे रहे हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी कहने का मतलब ये है कि कौन सा एट्रीब्यूट किसको डिटरमाइन कर रहा है, कौन सा की किसको डिटरमाइन कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ठीक है ना? फंक्शनल डिपेंडेंसी इसी को कहते हैं कि कौन सा की इसको डिटरमाइन कर रहा है, और उसको कैसे शो करते हैं। तो एक्स एरो वाई मतलब एक्स जो है एक एट्रीब्यूट है, वाई भी एट्रीब्यूट है। तो एक्स जो है वो वाई को डिटरमाइन कर रहा है, इसका क्या मतलब समझ रहे हैं बताओ? एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या सर मतलब? उससे रिलेशन है उसके साथ सर, रिलेट रिलेशन कर रहे नहीं हैं है, सर। रिलेशन नहीं है, एक टेबल है, एक टेबल में एक्स एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है, यस सर। उस वैल्यू से हमको यूनिक वाई मिल रहा है। यूनिकली हम जैसे रोल नंबर है, एक क्लास में एक रोल नंबर अगर है तो एक लड़का मिलेगा, यूनिक मिलेगा। ठीक है, रोल नंबर चेंज यस होगा सर। तो यस सर। लड़का का नाम भी चेंज होगा, लड़का नाम एक हो सकता है, लेकिन अल्फा यस सर। जब हम रोल नंबर 1 बोलेंगे, जब रोल नंबर 1 बोलेंगे तो वही लड़का यस सर बोलेगा जिसका रोल नंबर 1 है। ठीक है, तो यस हम सर। बोलते हैं क्या कि रोल नंबर डिटरमाइन स्टूडेंट नेम। ठीक है, और हर मतलब हम लिख लेते हैं आईडी लिख लेते हैं। अगर आईडी की बात करें पूरे कॉलेज में, अगर पूरे कॉलेज के डेटाबेस में बात करें, तो हर आईडी से उस बच्चे का, उस आईडी का हमको कोर्स पता चल जाएगा।
आईडी हम किसी आईडी का बात Yes, करेंगे sir. तो पता चलेगा ना कौन कोर्स में पढ़ता है, तो वो आईडी जितनी बार पुकारेंगे Yes, sir. Yes, sir. उसी कोर्स आएगा ना, कि हर बार अलग अलग आएगा, No, एक sir. ही एक आएगा। course मतलब कि आएगा, किसी sir. का आईडी है 1011, Yes, sir. ठीक है, हमारे आईडी 1011 क्या बैच है तुम्हारा, तो बोला BCA, ठीक है, फिर पूछे 1011 क्या बैच है तुम्हारा, तो क्या बोलेगा, BCA ही बोलेगा, ठीक है। तो हम BCA बोलेगा, उस sir. कंडीशन में हम कहेंगे Yes, कि sir. हमारा जो आईडी है वो बैच को डिटरमाइन कर रहा है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हम डेटाबेस में इसी तरह से करते हैं, ठीक है। बाद में यही डिटर्मिनेशन जो ये डिटरमाइन जो कर रहा है, ऐसा क्लोजर निकालेंगे और क्लोजर के आधार पे हम लोग बात करेंगे सुपर की का, टेंडेड की का, प्राइमरी की का और सेकेंडरी की का, ठीक। अब इसको सीधे हम एग्जांपल में लेके चलते हैं तुमको, वहां देखते हैं लोग क्या है। जैसे देखो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है। देखो ऑर्डर नंबर अगर यहाँ रिपीट हो रहा है 3 बार, ठीक है, अगर ऑर्डर डेट भी सेम टू सेम रिपीट हो जाए 3 बार, तो हम बोलेंगे ना कि ऑर्डर नंबर डिटरमाइन ऑर्डर डेट, ठीक है। Yes, sir. कुछ रूल है, कुछ रूल को समझ लो, ऐसे हम दिखा रहे हैं तुमको। ये देखो, यहाँ देखो, एक ये टेबल है, ये 3 टेबल बनाए हैं, ठीक है। एक कॉलम है अल्फा, दूसरा है बीटा। अल्फा का वैल्यू A, बीटा का वैल्यू B। अल्फा का वैल्यू दोबारा A आया तो बीटा का वैल्यू फिर B आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ A अल्फा के A वैल्यू पे बीटा का वैल्यू B था, तो अगले बार जब A आएगा तो बीटा और दूसरा कैसे आ जाएगा, वही आएगा। अगर दूसरा आता है Yes, sir. B तो आएगा, इसमें sir. हम नहीं कहेंगे कि अल्फा डिटरमाइन बीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो A 2 बार आया, दोनों बार बीटा, मतलब अल्फा के वैल्यू पे, सेम वैल्यू पे बीटा का वैल्यू सेम है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन पे हम Yes, बोलेंगे sir. अल्फा डिटरमाइन बीटा। टेबल नंबर 2 देखो, अल्फा के A वैल्यू पे बीटा का वैल्यू है B, सेकेंड टाइम में जब अल्फा A आया तो आया C, ठीक है। C, yes, sir. तो यहाँ पे ये वैल्यू, ये आवाज इको क्यों हो, हेलो, हाँ। तो A के वैल्यू पे B आया, फिर A आया तो C आया, मतलब अल्फा का जो वैल्यू है वो सफिशिएंट नहीं है इस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, या बीटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। मान लो हम अगर टेबल में हम बोले सिटी पटना है, तो पटना से कोई एक लड़का खड़ा हो सकता है क्या, कि बहुत बार हर लड़का पटना, बहुत लड़का पटना का होगा। तो वैसा एट्रीब्यूट, जिससे वैसा एट्रीब्यूट ऑफ अ टपल ऑफ एट्रीब्यूट जिससे बीटा का वैल्यू अलग अलग मिले हर बार, उसको हम बोलेंगे कि अल्फा बीटा को डिटरमाइन नहीं करेगा, या बोलेंगे अल्फा डिटरमाइन बीटा डज नॉट होल्ड, ठीक है। यहाँ देखो अल्फा का वैल्यू ABC है और बीटा का XZ है, ये है। अब इस टेबल में ABC तीनों एक ही पर आया है, तो हमको नहीं पता है कि अगला बार A आता तो बीटा उस करस्पॉन्डिंग X रहता कि कुछ और रहता, हमको नहीं पता है। तो इस कंडीशन में जब ABC अल्फा का वैल्यू यूनिक है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा डिटरमाइन बीटा। ऐसे ही अंदाज पे, अंदाज में तो रूल है कि अगर अल्फा का वैल्यू सारा का सारा यूनिक है दैट विल डिटरमाइन, श्योरली दैट विल डिटरमाइन, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं वैल्यू लेके, रोल नंबर 1 नेम अमित, रोल नंबर 1 फिर आया फिर अमित, इसका मतलब रोल नंबर डिटरमाइन नेम। दूसरे टेबल में रोल नंबर 1 एक बार अमित बोलता है और रोल नंबर 1 एक बार सुमित बोलता है, मतलब अल्फा बीटा को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो रोल नंबर 1 अमित, रोल नंबर 1 अमित, रोल नंबर 2 सुमित, ये डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। यहाँ देखो 1 2 3 तीनों में अमित, ये अल्फा जो है, अल्फा का वैल्यू तीनों हमारा यूनिक है, ठीक है। यूनिक है तो यूनिक है तो हम देख के बोल सकते हैं, यूनिक वैल्यू देख के कि अल्फा श्योरली बीटा को डिटरमाइन करेगा। बीटा का वैल्यू सारा के सारा एक है तब भी, रोल नंबर 1 भी अमित हो सकता है, रोल नंबर 2 भी अमित हो सकता है, रोल नंबर 3 भी अमित हो सकता है, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अल्फा का वैल्यू अगर सेम वैल्यू 2 बार आएगा तो बीटा का वैल्यू भी सेम आना चाहिए, 2 बार वही वैल्यू आना चाहिए,
जो एक अल्फा का था तभी कहेंगे कि अल्फा बीटा को डिटरमाइन कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इतना रूल याद रखोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रूल नंबर था कि कुछ कुछ रूल था जिससे हम लोग अगर एग्जाम में पूछे तो हम लोग बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था कि एक्स डिटरमाइन बीटा, एक्स डिटरमाइन वाई ऑलवेज होल्ड इफ द वैल्यू एक्स आर यूनिक। ए का वैल्यू देखो 5, 8, 1, 4, कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है? 5, 8, 1, 4 कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। मतलब ए जो है डिटरमाइन करेगा, ए जो है डिटरमाइन करेगा बीटा को। ठीक है, इसका कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रहा है तो आराम से डिटरमाइन कर लेगा। बीटा अगर दोबारा आता तब हम देखते कि अल्फा के सेम वैल्यू पर बीटा का वैल्यू सेम है कि नहीं है। ये तो यूनिक है, यूनिक है तो कोई बात ही नहीं है कि हम चेक कर पाए। यहाँ तो हो गया कि जो ए है वो डिटरमाइन करेगा सबको। अब बीटा को लो, बी को लो, 4, 5, 9, 7, ये भी यूनिक है, दैट इज ऑल्सो यूनिक, तो बीटा भी डिटरमाइन करेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 में है कि सी अगर सारा का सारा वैल्यू एक ही आ रहा है तो सी किसी से भी डिटरमाइन हो जाएगा, सी किसी से भी डिटरमाइन हो जाएगा, कोई भी डिटरमाइन कर देगा सी को। ठीक है, अब डी का वैल्यू देखो 2, 2, 3, 3, तो डी का जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं है, दो बार आ रहा है, 3, 3 बार आ रहा है। तो अब हमको देखना है कि इसको अल्फा मानते हैं तो अल्फा के सेम वैल्यू पे बीटा का वैल्यू सेम है कि नहीं है। 2, इसका 2, फिर 2 आया तो और एक आया, ये पलट गया, तो डी ई को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 था, 5 था, अगला बार फिर 3 आया थी, 8 हो गया, ये पलट गया। इसको इसको कंसिस्टेंट होना चाहिए था अल्फा के बीटा के लिए, अल्फा के वैल्यू के लिए। तो डी ई को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। अगर हम सी को देखें तो सी का वैल्यू सेम है, रूल नंबर 2 यही है, सी का वैल्यू सेम है तो ये किसी से डिटरमाइन हो जाएगा, तो वो डी से भी डिटरमाइन हो जाएगा। है? क्या हो जाएगा? हाँ, अब देखो कैसे होगा, देखो लॉजिक देखो, अगर मान लो ये 2 है, ये अल्फा है, अल्फा का बीटा, अल्फा फिर आया, फिर बीटा समान आ गया, अल्फा दूसरा अल्फा आया, बीटा वही है, बीटा वही है, तो ये चाहे जो भी रहे वो सेम आ रहा है, तो अल्फा दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, चौबारा आएगा, तभी बीटा का वजह तो सेम है, ये कंफ्लिक्ट होने का सवाल ही नहीं है ना, कंफ्लिक्ट होने का सवाल नहीं है। क्लास में 60 बच्चा, 60 का नाम अमित, 60 का नाम अमित, रोल नंबर 1 अमित, रोल नंबर 2 अमित, रोल नंबर 3 अमित, रोल नंबर 4 अमित, सब अमित। ठीक है, लेकिन अमित नाम जरूर है, लेकिन लड़का सब अलग अलग है ना जी, एक ही लड़का का रोल नंबर 60 नहीं ना है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, बीटा का वैल्यू सारा का सारा सेम है। ठीक है, और हमारा तब हम कह सकते हैं कि ये बीटा डिटरमाइन हो जाएगा, ये डिटरमाइन हो ही जाएगा। तो यही हमारा रूल है। रूल नंबर 2 ये तो हो गया। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 में यह आता है कि एक्स वाई विल ऑलवेज होल्ड इफ ऑल द वैल्यू ऑफ वाई आर सेम रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे हम बता रहे थे सी का वैल्यू, सी सारा का सारा वैल्यू सेम है, तो सी जो है सबसे डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक, यही 2 रूल है जिससे हम पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझ में आता है। ठीक है, ये रूल नंबर 3 ये कहता है for a functional dependency x determine y to hold if two tuples in a table agree on the value of attribute x, ठीक है, attribute x के वैल्यू पे एग्री हैं, then they must also agree on the value of attribute y। x के वैल्यू पे अगर एग्री है तो y के वैल्यू पे भी एग्री होना पड़ेगा। तो x अगर रिपीट हो रहा है तो y भी सेम वैल्यू रिपीट होगा हर x के उस वैल्यू पे। अल्फा अगर अल्फा के उस वैल्यू पे सेम बीटा आना चाहिए, जब जब अल्फा आएगा तब तब बीटा वही आएगा। अगर अल्फा के वैल्यू पे बीटा सेम नहीं आ रहा है हर बार तो वो डिटरमाइन नहीं करेगा। फॉर ए फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइन y, वायलेशन विल अकर ओनली व्हेन फॉर 2 और मोर सेम वैल्यू ऑफ x द करस्पॉन्डिंग y वैल्यू आर डिफरेंट। ठीक है, अगर सेम वैल्यू x का आ रहा है और y का हर बार डिफरेंट वैल्यू आ रहा है सेम x के लिए तो डिटरमाइन नहीं कर रहा है ना। यही है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी।
ठीक है, चलो फिर कुछ और पूछना है? ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, देखो ट्रिवियल फंक्शन वही है जिसमें कि हम जो बोलते हैं एक्स डिटरमाइन वाई, तो राइट हैंड साइड वाला जो है वो सबसेट होगा एक्स का। मान लो हम लिखते हैं कि ए बी डिटरमाइन ए, ए बी डिटरमाइन ए, तो ए बी तो खुद ए तो है ही है ना उसमें, ए तो ए बी के साथ ए है, ए डिटरमाइन ए, रोल नंबर से तो रोल नंबर, कोई अगर पूछे हमके सर मेरा रोल नंबर 4 है, डेटाबेस में देख के बताइए मेरा रोल नंबर कितना है, कैसा लॉजिकल टाइप का लग रहा है ना? कोई बोले कि मेरा रोल नंबर 4, तुम बोलो रोल नंबर 6 है मेरा, डेटाबेस में देख के बताइए मेरा रोल नंबर कितना है। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का ट्रिवियल, जिसमें जो डिटरमाइन कर रहा है वो राइट हैंड साइड, जिसको डिटरमाइन कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। ठीक है, तो वो तो नॉन ट्रिवियल वो हो गया। तो नॉन ट्रिवियल वाला जो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको हमें कभी भी फाई नहीं आएगा। ए बी डिटरमाइन कर रहा है बी को, या ए बी डिटरमाइन कर रहा है ए को, ए बी डिटरमाइन कर रहा है खुद ए बी को। ठीक, लॉजिक ही है कि ए हमेशा ए को डिटरमाइन करेगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, बी हमेशा बी को डिटरमाइन करेगा, बी हमेशा बी को। तुम अगर हमको नाम बताओ कि मेरा नाम राज वर्मा है, मेरा नाम बताइए तो क्या है डेटाबेस में देख के, तो हम तुमको राज वर्मा ही बताएंगे। नेम तो नेम को डिटरमाइन करेगा ही, तो हर एट्रीब्यूट खुद को डिटरमाइन करेगा, यही हम लोग का ट्रिवियल। ठीक है, ए बी मिलके ए को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए तो ऑलरेडी ए बी के साथ ए है ही है, ए तो ए को डिटरमाइन करेगा ही, यही है ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल में है जैसे एक्स डिटरमाइन वाई, तो वाई अलग है, एक्स अलग है, वाई एक्स का सबसेट नहीं है ना? जैसे रोल नंबर डिटरमाइन नेम, ये हो गया नॉन ट्रिवियल, रोल नंबर डिटरमाइन नेम। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो नॉन ट्रिवियल ही पढ़ना है, ट्रिवियल तो ऐसा ही है, उसको हम लोग बाद में उसको यूज करते हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको एक्सपैंड करने के लिए। ठीक, क्लियर? ठीक है, चलो फिर ओके सर, सेशन इन करें। ओके सर, थैंक यू सर।